In the last lecture, we have defined what is a perfectly black body. अगर आपको याद होगा तो based on three coefficients, coefficient of absorption. Coefficient of absorption was amount of radiant energy absorbed to that of total radiant energy incident on a surface. It is defined as coefficient of absorption. हमने define किया था what is coefficient of reflection, amount of radiant energy reflected to that of and energy incident. उसको हमने denote किया था R से. Similarly, we have denoted coefficient of transmission by T, which is the ratio of amount of radiant energy transmitted by the surface to that of amount of radiant energy incident on the surface. And then we have seen A plus R plus T equal to 1. फिर based on the values of A, R and T, A, R और T की वैल्यू पे हमने different types of substances define किए थे. पहला था diathermanous. अगर आपको याद होगा diathermanous is substance for which the value of T is 1. A and R both are 0. So A plus R plus T equal to 1. A और R 0 और T की वैल्यू 1. तो सारा का सारा एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगा. Whatever is incident, it is completely transmitted. Then we have defined second class of substance जिसको हम बोलते हैं ethermanous. Ethermanous में transmission coefficient 0 होता है. Such substances are opaque. Opaque मतलब है ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो फिर या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे. फिर इसमें हमने सब टाइप देखा था परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स. परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स में A की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है. मतलब जितना भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा हो गया रिफ्लेक्ट. देन वी हैव सीन परफेक्ट एब्जॉर्बर्स जिसको हम ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं. तो फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब फॉर ब्लैक बॉडीज A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है एंड T की वैल्यू आल्सो 0. So whatever radiant energy is incident, it is completely absorbed, right? Then we have seen perfect black body is a body which absorbs all the radiant energy incident on it. हम practically black body कैसे बनाएंगे तो उसका एक एग्जाम्पल था which was Fairy's black body. तो Fairy's black body हमने in detail देखा था लास्ट सेक्शन में. आज से एक क्विक रिवीजन करेंगे, just a quick revision just to understand what is the basic construction and how does a body can absorb complete radiation, thermal radiation incident on it. So Fairy's black body is a practical black body which consists of double walled है यहाँ पे, double walled hollow metallic sphere. So as you can see हमारे पास यहाँ पे एक sphere है which is a hollow sphere and it is hollow metallic sphere. ये double walled है. तो you have double walled, एक inner surface एक outer surface. So you have double walled hollow metallic sphere. हमने एक एक चीज डिटेल में देखा था. We have already seen कि why it is hollow, why it should be hollow, etc. etc. तो आपको पता होना चाहिए by default, right? So you must know you have double wall here and it is hollow. इसमें जो भी गैस था वो इवैक्यूएट कर लिया, वैक्यूम क्रिएट किया यहाँ पे, राइट? देन इसका जो इनर सरफेस था, इनर सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. तो इनर सरफेस पे हमने लैम्प ब्लैक का कोटिंग किया है. तो यहाँ पे देयर इज अ कोटिंग. तो कोटिंग का मतलब आपको पता है एक थिन लेयर लगाना. तो यू हैव अ कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक on the inner surface and you have nickel polish on the outer surface. तो जो outer surface है उसको हमने निकेल से पॉलिश किया है. inner surface को हमने लैम्प ब्लैक से कोटिंग किया था, right? Correct. Then there is a small aperture, very small aperture and diametrically opposite to which you have conical projection. तो यहाँ पे conical projection है. conical projection आप ऐसा भी दिखा सकते हो, doesn't matter. सिर्फ यहाँ पे एक कोन होना चाहिए. यू शुड शो अ कोनिकल स्ट्रक्चर हियर. तो कोनिकल स्ट्रक्चर का प्राइमरी रोल क्या था? कोनिकल स्ट्रक्चर का प्राइमरी रोल है टू डाइवर्ट थर्मल रेडिएशन. जो भी थर्मल रेडिएशन एपर्चर से एंटर करेगा, व्हाटएवर थर्मल रेडिएशन इज एंटरिंग फ्रॉम दिस एपर्चर,
तो जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, द ओनली रोल ऑफ दिस कोनिकल प्रोजेक्शन इज टू डाइवर्ज। अगर डाइवर्जन नहीं किया तो क्या होगा? डाइवर्जन अगर आप नहीं करते हो तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो थर्मल रेडिएशन है ये यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा। तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद, पहले तो यहाँ पे पहला इंसिडेंस है 98% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, लेकिन 2% एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब ये था कि जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट? तो इवन 2% गोइंग बैक, यू कैन नॉट से इट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हमको यहाँ पे 2% को भी वापस जाने देना नहीं है, तो वी पुट अ कोनिकल प्रोजेक्शन हियर। तो कोनिकल प्रोजेक्शन का एक ही रोल है, टू डाइवर्ट। अब देखो कहीं पे ऐसा दिखा है कोनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, डजंट मैटर। कहीं पे प्रोजेक्शन को ऐसा भी दिखाया है, some places they are showing conical projection something like this, okay, it is perfectly fine, is one and the same thing। सिर्फ अल्टीमेटली इंटेंशन ये है, अगर आपने इंक्लाइंड रखा है, अगर आप कुछ एंगल पे रख रहे हो, फिर तो पक्का है कि ये जो थर्मल रेडिएशन है ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा ही जाने वाला है, राइट? तो रिमेंबर कोनिकल प्रोजेक्शन का रोल क्या था? कोनिकल प्रोजेक्शन का रोल सिर्फ इतना था कि 180 डिग्री से रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो अब होगा क्या, यहाँ पे थर्मल रेडिएशन आया, कोनिकल प्रोजेक्शन से डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट होने के बाद यहाँ पे उसका पहला इंसिडेंस है, पहला इंसिडेंस पे 98%, 98 या 99 या 99.2 इज द सेम थिंग। सिर्फ इतना है कि ग्रेटर देन 98% इज एब्जॉर्ब। तो 98% है, उससे थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, राइट? देन बचा हुआ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। फिर सेकेंड एब्जॉर्प्शन पे जो बचा हुआ था उसका 98% एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल 100 जूल इज इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन, 100 में से 98 इज एब्जॉर्ब, बचा 2 जूल। 2 जूल कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? यहाँ पे। 2 का 98% 1.96 जूल एब्जॉर्ब हुआ, बचा हुआ 0.04। तो ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद, आफ्टर मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, total thermal radiation is absorbed and nothing goes out. So this is how you can actually absorb thermal radiation completely। इसके लिए क्या बोलते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी एपर्चर को बोलते हैं बाय द वे, क्योंकि एपर्चर ने पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, बाकी किसी ने नहीं। तो एपर्चर पे अगर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंस होगा तो ही thermal radiation will be absorbed। So what is perfectly black body? Aperture। ये बाहर क्या था? निकेल पॉलिश। तो बाहर का सरफेस है, इट इज पॉलिश्ड बाय निकेल। यहाँ पे क्या है? इवैक्यूएटेड, मतलब you have basically taken out all the gas so as to avoid any transmission of thermal energy due to convection, right? ये अंदर क्या था? लैम्प ब्लैक कोटिंग। So you have lamp black coating over here। Then ये है डबल वॉल्ड hollow sphere, double walled hollow metallic sphere, right? Then you have this as conical projection। Good। तो यहाँ तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। वी हैव जस्ट डन अ क्विक रिवीजन ऑफ हाउ डज अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी लुक्स लाइक। अब अगला टॉपिक, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो सो फार रिवीजन का एक पर्पस ये भी था कि हमने 3 कोएफिशिएंट्स वापस से रिवाइज किए थे। कौन से 3 कोएफिशिएंट थे? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। हम अभी तक इमिशन की बात ही नहीं कर रहे। तो यू हैव 3 कोएफिशिएंट्स, वन इज absorption, reflection, transmission। But wait, I told you कि अगर हमारे पास एक बॉडी है which can absorb all the radiant energy, तो वो बॉडी emit भी कर सकता है। तो you can have a body, black body, which can also emit all the radiant energy। When I say all the radiant energy, मतलब it can emit radiant energy of all wavelength, राइट? तो हमको इमिसिव पावर डिफाइन करना पड़ेगा, हमको इमिशन से रिलेटेड भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर। तो द ओनली डिफरेंस हियर इज, ये याद रखना,
यहाँ पे हम इमिशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विद मैटर, मतलब थर्मल रेडिएशन कहीं से तो आया, उसका सोर्स क्या है वी डोंट केयर, वो एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, थर्मल रेडिएशन ने सरफेस पर इंटरैक्शन किया और तीन चीजें हुई, या तो रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन। अब इमिसिव पावर की जब बात करते हो तो इमिसिव मतलब इमिशन, मतलब एक बॉडी एनर्जी को इमिट करेगा, और एक बॉडी थर्मल एनर्जी कब इमिट करेगा, थर्मल, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल, टेम्परेचर। तो जब वो हायर टेम्परेचर पे होगा ओनली देन इट इज कैपेबल ऑफ इमिटिंग एनर्जी। नंबर वन, तो ये क्लियर रखो यहाँ पे जब हम इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं तो द बॉडी इज एट अ टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर अदर देन एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो? जीरो केल्विन। जीरो केल्विन इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यस, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है आइस पॉइंट, या इसको बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। और 0 केल्विन इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन है ये, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो रिमेंबर, हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बल्ब, मे बी बल्ब, हमारे पास एक छोटा सा बल्ब है। तो लेट्स से वी हैव सम सोर्स ऑफ लाइट, तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इट इज इमिटिंग एनर्जी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। So it emits light in this direction, it emits light मतलब यहाँ पे मैं थर्मल रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तो it emits thermal radiation in all possible direction, right? Let us say total thermal energy emitted is Q. Let us say ये जो पूरा का पूरा बल्ब है इसका एरिया है A, कितना एरिया है A, right? So amount of radiant energy emitted by a body per unit area per unit time is defined as emissive power। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये, एक सेकेंड में यूनिट एरिया में से कितना रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर। तो कैसे डिफाइन करोगे इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी? मैं इसमें दो तीन वर्ड्स ऐड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, से पहले बेसिक समझ लो। Q अपॉन 80 इज नथिंग बट इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को हम डिनोट करते हैं E से। तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट? अब यूनिट एरिया क्यों बोला मैंने? फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज यहाँ से टोटल एनर्जी 100 जूल इमिट हो रहा है और इसका टोटल एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। इमेजिन टोटल एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। हमको देखना था कि यूनिट एरिया में से हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। हमको देखना है कि पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर में से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। तो क्या करते हो? टोटल एनर्जी को डिवाइड करते हो किससे? टोटल एरिया से। तो ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट? लेकिन कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड। पर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में यूनिट एरिया से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है उसको क्या बोलोगे? इमिसिव पावर। रिमेंबर, इमिसिव पावर इज एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऐसा क्यों डिफाइन करना पड़ता है हमको? इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि ये बॉडी पूरे के पूरे बॉडी, पूरे के पूरे सरफेस से एनर्जी इमिट हो रहा है। हमको देखना है यूनिट एरिया से कितना। और जब तक मैं इस बल्ब को चालू रखूंगा, 10 घंटे तक चालू रख दिया तो 10 आवर्स तक इमिट करेगा। मुझे चेक करना है पर सेकेंड में कितना, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एमिसिव पावर। गुड, राइट? अब दो तीन वर्ड मैंने बहुत मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। तो इमिसिव पावर डिफाइन कैसे होगा उसके लिए आई विल पुट सम वर्ड्स हियर। तो हमने बोला इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। मैं यहाँ पे ऑफ अ बॉडी बोल रहा हूँ तो ये बॉडी ब्लैक बॉडी भी हो सकता है, ये बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बॉडी जैसे लाइक योर्स ऑल्सो, मैं बताऊंगा वो भी। इवन योर बॉडी
emits thermal radiation. So emissive power of a body at a given temperature. This is important. मैंने जब बोला कि 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे तो इसलिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी भी ज्यादा एमिट होगा. तो आप जब बोलते हो emissive power of a body is the radiant energy emitted per unit area per unit time. कौन से टेम्परेचर पे? 10 केल्विन पे, 20 केल्विन पे, 10,000 केल्विन पे. So that is why you have to mention this at a given temperature. Given मतलब fixed temperature. So emissive power of a body at a given temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज्यादा इमिट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा. इसका मतलब इमिसिव पावर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर. वो हम आगे भी देखेंगे. सो इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर is the radiant energy emitted per unit time per unit area, per unit time per unit area. Easy. So emissive power of a body at a given temperature is defined as the radiant energy emitted per unit time per unit area. So all the bodies, every body, be it your body, be it any other surface, take a case of bulb, sun, any other star, all the bodies, so every body emit thermal radiation at all the temperatures other than except for 0 Kelvin. Good. अब ऐसा भी बोल सकते थे at all the temperatures greater than 0 Kelvin. ये okay नहीं है, this is 0 Kelvin. So except for okay, it is not okay. It is 0 Kelvin. Right? तो ऐसा भी बोल सकते हो every body emits thermal radiation at all the temperatures greater than 0 Kelvin. अब यहाँ पे मैंने except for 0 Kelvin लिखा है, तो do not get confused कि फिर 0 केल्विन से कम टेम्परेचर पे बॉडी इमिट करेगा क्या, -1 केल्विन पे इमिट करेगा क्या? हो ही नहीं सकता. दिस इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट यू कैन हैव. इससे कम नहीं हो सकता. यू कैन नॉट हैव टेम्परेचर लेस देन 0 केल्विन. रिमेंबर दिस. तो ये सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर है. यू कैन नॉट हैव अ बॉडी विच इज -10 केल्विन. नहीं हो सकता. थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता. गुड. राइट. देन अब आई वाज टेलिंग यू कि हमारे बॉडी भी थर्मल रेडिएशन इमिट करता है डेफिनेटली. कहाँ यूज होता है थर्मल इमेजिंग? कहाँ यूज होता है? जब मे बी देयर वाज अ मूवी, आई थिंक उसमें ही था, वो उरी अटैक पे एक मूवी बना था. आई डोंट रिमेम्बर कि उसमें ही था क्या वो, लेकिन नाउअडेज सोल्जर्स आल्सो हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ थर्मल इमेजर. और ग्लासेस पहनते हैं, देन दे कैन सी some red color, right? Red color क्या है वो? It is the heat emitted by the enemy. जो enemy के soldiers होंगे या जो भी होंगे, they also emit thermal radiation. तो you can actually make an image of it. और उससे आप डिटेक्ट करते हो कि वहाँ पे कौन सा बॉडी है, right? So even your body, my body, any other object, because we are at a temperature higher than 0 Kelvin, all of us are emitting thermal radiation. तो हमारी जो बॉडी है वो थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है? ग्रेटर देन 0 केल्विन. यहाँ तक क्लियर? अब लेट अस से लेट Q be the radiant energy emitted by the body. A, capital A, with the surface area of the body, and let us say T be the time for which
time for which body emits thermal radiation या फिर emits thermal energy या फिर radiant energy, एक ही बात है। तो हमारे पास एक बॉडी है, it is emitting radiant energy and the amount of radiant energy emitted is given by Q. A is the area of that body and T is the time for which it is emitting thermal radiation. Therefore, emissive power is given by by definition अभी हमने देखा, what is emissive power? Radiant energy Q upon A into T. तो आपको पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसा यूनिट बना सकते हो। What is Q? Energy. Energy is measured in joule. Area is meter square. Time is joule per meter square per second. But wait a minute. You know what is joule upon second? What is energy per unit time? What is work upon time? Power. तो ये जूल पर सेकंड क्या है? पावर है। और पावर को मेजर करते हो वैट में, पता है ना? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, पावर इज मेजर्ड इन वैट। तो यू कैन राइट डाउन दिस एज वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और वैट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? वेल बाय द वे, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब इमिसिव पावर जैसा एक क्वांटिटी आपने पहले भी कहीं तो देखा है, विच इज दैट क्वांटिटी? नहीं, डिस्ट्रक्टिव पावर इज समथिंग एल्स, वो रे ऑप्टिक्स में आएगा। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द सेम थिंग, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी। वहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। क्योंकि इंटेंसिटी कहाँ यूज करते हो? टू कंपेयर टू सोर्सेस ऑफ लाइट। कौन सा सोर्स ज्यादा ब्राइट है, कौन सा सोर्स कम ब्राइट है। तो ब्राइटनेस या फेंटनेस को कंपेयर करने के लिए आप इंटेंसिटी का यूज करते हो। और जब आप इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कंपेयर करोगे तो वो दिखना चाहिए, तब कंपेयर करोगे ना। दिखेगा कौन? जो विजिबल है। तो वहां पे कौन से रेडिएशन की बात हो रही है? विजिबल लाइट की। यहाँ पे कौन सा रेडिएशन है? थर्मल रेडिएशन। कैन यू सी? नो, यू नीड स्पेशल थर्मल सेंसर टू सी थर्मल रेडिएशन। तो डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे जो एनर्जी इमिट हो रहा है इट इज स्ट्रिक्टली रेडिएंट एनर्जी। तो ये इंटेंसिटी ही है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। इसको हमने नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया? इमिसिव पावर। तो इसके यूनिट और उसके यूनिट क्या आएंगे? सेम। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी इटसेल्फ। सिर्फ यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं? इमिसिव पावर, राइट? तो जो इमिसिव पावर है, it depends on 4 different factors. So emissive power of a body depends on number 1, अभी बताया था मैंने बताया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लिख रहा हूँ at a given temperature। क्यों लिखा था? because emissive power depends on temperature, so it depends on temperature of the body। Number 2, it depends on surface area of the body। Number 3, it depends on nature of the body। बॉडी का मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मे बी यू हैव अ बॉडी which has a material which is capable of emitting more energy or which is capable of absorbing more energy। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉडी पे। नेचर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी का मटेरियल क्या है, डिपेंड्स ऑन व्हाट मटेरियल यू हैव। तो दो सेम साइज के
सेम सरफेस एरिया के हमारे पास बॉडीज है, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो मे बी इमिसिव पावर इज ऑल्सो डिफरेंट. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी. It also depends on nature of the surroundings. मतलब nature of the environment basically. What do you mean by environment? You know, chemistry में हुआ होगा. Environment is anything except for body. Body छोड़ के उसके आजू बाजू में जो कुछ भी है उसको बोलते हो environment. Correct? So for me, all of your environment plus this mobile stand plus this fan plus this table plus this podium, right? तो बॉडी को छोड़ के जो भी सराउंडिंग में है दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स, राइट. अब हाउ डज दैट डिपेंड ऑन सराउंडिंग? सराउंडिंग पे क्यों डिपेंड किया? यू नो हीट इज एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टू सेम सोर्सेस ऑफ लाइट. आई हैव बॉट टू बल्ब्स, टंगस्टन के बल्ब, दोनों 60 वाट पावर रेटिंग के हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों सेम ही होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे. एक को मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा दिया, एक को मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लगाया, दोनों को चालू कर दिया. So what do you expect? Which will radiate more energy? The one which is in, or no, the one which is inside refrigerator. क्योंकि higher the temperature difference, higher is the energy radiated. तो सब सेम था except for surrounding. Surrounding change होना मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होना, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया को ही तो हमने बोला ना इमिसिव पावर. तो इमिसिव पावर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. तो सिर्फ सराउंडिंग चेंज होने से भी इमिसिव पावर चेंज होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो यहाँ पे इस टॉपिक में टेक अवे पॉइंट्स क्या है? व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस, कि जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी हर बार एब्जॉर्ब करेगा, वो रेडिएट भी कर सकता है. ब्लैक बॉडी भी रेडिएट कर सकता है, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल तो हम ऑर्डिनरी बॉडी बोलते हैं, वो भी रेडिएट करेगा. कब करेगा? एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, राइट. तो किसी भी एक बॉडी ने कितना रेडिएंट एनर्जी, कितना थर्मल एनर्जी रेडिएट किया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर. तो इमिसिव पावर इज इक्विवेलेंट टू, एनालॉगस टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, राइट. एंड इट डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर्स: टेम्परेचर, nature, surface area and nature of surroundings. Good. अगर इतना क्लियर है तो now we are supposed to see spectrum of black body radiation. Spectrum of black body radiation at different wavelengths. At different wavelengths. तो सबसे पहले, before we go into detail of spectrum of black body radiation, black body radiation का spectrum क्या है, वो कैसा दिखता है, वो हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले I want to know what do you mean by spectrum? Band of light, set of wavelengths, correct है. तो you must know, क्योंकि 11th में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, बिकॉज मैंने ही पढ़ाया तो आई रिमेम्बर. तो आपको पता होना चाहिए, हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, राइट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ से लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ तक जो एनर्जी इमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. The energy emitted in the form of electromagnetic radiation from smallest possible wavelength to largest possible wavelength. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि what is the meaning of wavelength? Simplest definition बताओ, मुझे complicated नहीं चाहिए. I am not asking you. No, wavelength. Wavelength is length. The distance between two successive crests or two successive trough, right? So you should know, a very interesting thing. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाना पड़ेगा, ये समझना है तो वो समझना पड़ेगा. अब हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट्स तो है ही, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है
मैग्नेटिक फील्ड, जिनको वो भी नहीं याद है तो उतना भी डिटेल हमको पता होना चाहिए. इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो. तो आपको ये पता होना चाहिए, सपोज मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को लेता हूं x, ये है z, ये है y. तो यू मस्ट नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, तो दीज आर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक होता है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस. एंड यू मस्ट नो electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation. So as you can see, ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन वेक्टर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वेक्टर था, और यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. राइट. तो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे अब दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड. तो फिर किसके क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड की? कोई भी ले लो, डजंट मैटर, डजंट रियली मैटर. crest to crest distance between electric field vibrations और magnetic field vibrations they will be the same. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट ये है कि crest to crest distance, सिर्फ crest to crest distance चेंज होने से पूरा का पूरा साइंस चेंज हो गया. ओनली डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज वेरी स्मॉल then the energy is very large. मतलब वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है. Why? You know what is energy of photon? Equal to h nu. You know what is nu? Frequency. You know what is frequency? C by lambda. So energy of radiation is proportional to frequency. It is inversely proportional to wavelength. वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा. तो जो हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये स्पेक्ट्रम में सिर्फ वेवलेंथ चेंज होने से एनर्जी चेंज होगा. और इंटरेस्टिंगली अलग अलग एनर्जी या फिर अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स जनरेट करने के लिए अलग अलग मेथड भी है. यू कैन नॉट जनरेट ऑल द वेवलेंथ बाय द सेम मेथड. सबसे हाईली एनर्जेटिक होता है, पता है कौन सा? यू नो which is the most energetic. सबसे कम wavelength मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी. You know what is this? Gamma radiation. पता है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? They are produced inside a nucleus. तो इसका सोर्स क्या है? न्यूक्लियर सोर्स है. करेक्ट. इसका यूज भी अलग है, इसका प्रोडक्शन मेथड भी अलग है, इसका यूज भी अलग है. उसका यूज क्या है वो बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे ही. तो अभी हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे इन डिस्कसिंग. सिर्फ ये रफ इंट्रोडक्शन है सो दैट यू बेसिकली कैन कनेक्ट. उसके बाद होता है एक्स रेडिएशन, एक्स रेज, रॉन्टगन रेज. यू नो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, पता होना चाहिए. तो लेटेस्ट से मैंने एक टारगेट लिया. अब जब टारगेट बोल ही रहा हूं तो टारगेट का मतलब क्या होता है? बम्बार्ड करेंगे. इसके ऊपर हम लोग कुछ तो बम्बार्ड करने वाले हैं. वो कुछ तो क्या है? वो कुछ तो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास एक कॉपर का टारगेट था. अच्छे से ध्यान दो, दिस इज नॉट फॉर टाइम पास, दिस इज टू अंडरस्टैंड समथिंग. हमारे पास एक कॉपर का टारगेट था. आपको पता है कॉपर इज अ मेटल, सो इट विल हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. और ये हर एक डॉट इज वन एटम. तो मैं एक सिंगल एटम को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ. तो ईच रेड डॉट इज एटम ऑफ कॉपर. और आपको पता है किसी भी मेटल में, एनी मेटल यू टेक, द इनरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर. राइट. अब हमने क्या किया? हमने इस कॉपर टारगेट को बम्बार्ड किया. किससे बम्बार्ड किया? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से. तो हमारे पास एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है, वो हमने कॉपर टारगेट के साथ कर दिया बम्बार्ड.
अब कॉपर के अंदर जो इनर मोस्ट शेल है, क्या नाम है इसका? के शेल। तो के बोलते हैं, या तो n इक्वल टू 1 बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। तो यहाँ पे जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, इसका कोलिजन हो गया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। तो यहाँ पे ये कोलिजन होगा इन इलास्टिक। व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी लेके हो गया नॉकआउट, तो इट इज नॉकड आउट। तो नॉकआउट होने के बाद यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हुआ। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, क्योंकि नाउ दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल क्या है? इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं है तो स्टेबल है कि? तो इस वैकेंसी को भरने के लिए ऊपर के लेवल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मे बी देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, मे बी देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1। तो जब 2 से 1 ट्रांजिशन होगा, तो जो एक्सेस एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो इमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, but the transitions are taking place at the innermost shell, correct? तो एक्सरे का प्रोडक्शन टेक्निक में हम इनरमोस्ट शेल में ट्रांजिशंस करवाते हैं। इनरमोस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि अंदर के शेल्स का एनर्जी ज्यादा होता है, तो जो फोटोन इमिट होगा इसका भी एनर्जी ज्यादा होगा। इसका प्रोडक्शन टेक्निक अलग, इसका यूज अलग। कहाँ यूज करते हो? द बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्रैक्चर डिटेक्शन। करते हो ना, एक्सरे फोटोग्राफ निकालते हो ना, वो बोलते हो एक्सरे करवा के आया, यू डोंट गो फॉर एक्सरे, यू गो फॉर एक्सरे फोटोग्राफ, राइट? बोन में अगर फ्रैक्चर है, अभी देखो क्या है, ये हाईली एनर्जेटिक है। अब हाईली एनर्जेटिक है तो हमारे फ्लैश से, फ्लैश मतलब हमारे मांस से वो रेडिएशन पास हो सकता है, लेकिन हमारे हड्डियों से नहीं हो सकता। तो जो बोन था, बोन इज हाईली डेंस, हाई डेंसिटी बोन, उसमें अगर एक क्रैक आ गया तो वो क्रैक से एक्स रेडिएशन पास होगा, लेकिन बाकी जगह से पास नहीं होगा। इसके पीछे एक फोटो होता है, फोटो मतलब एक शीट होता है ब्लैक कलर का, उल्टा होता है, ब्लैक नहीं होता है, वो ग्रे होता है। जहां जहां पे एक्स रेडिएशन इंसिडेंट हो गया वो ब्लैक हो जाता है उतना पार्ट, राइट? तो यू कैन डिटेक्ट द क्रैक, क्योंकि बाकी जगह से एक्स रेडिएशन पास नहीं हुआ, पास हो तो सिर्फ इस क्रैक में से। तो इसका यूज अलग। और कहाँ यूज होता है? एरोप्लेन की बॉडी में, या फिर शिप की बॉडी में, या फिर सबमरीन की बॉडी में क्रैक डिटेक्शन करना हो तो वहां पे भी यूज होता है, राइट? देन इसके बाद है कौन सा? कौन सा? अल्ट्रावायलेट, यूवी, यूवी रेज। इसका भी प्रोडक्शन टेक्निक सिमिलर है, सिर्फ इतना है कि ट्रांजिशंस इनर मोस्ट ऑर्बिट पे नहीं हो रहे, आउटर ऑर्बिट्स पे हो रहे हैं। तो यूवी रेज दे आर आल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। तो जो सनस्क्रीन लोशन लगाते हो आप, उस पर लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन, क्योंकि सन इज अ ब्लैक बॉडी, रिमेंबर, एंड ब्लैक बॉडी विल इमिट ऑल द रेडिएंट एनर्जी। मैंने इसलिए पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था, अगर कोई बॉडी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो सारा इमिट भी करता है। मतलब सन इज प्रोड्यूसिंग ऑल द रेंज ऑफ वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम गामा एंड इट विल गो अप टू रेडियो। तो यूवी भी आ रहा है वहां से। तो ultraviolet rays is harmful to us. It can cause cancer. So we want to protect ourselves from harmful ultraviolet radiation. एक तो ओजोन हेल्प कर रहा था, लेकिन फिर हम कार्बन इमिशन की वजह से वी आर रिड्यूसिंग ओजोन डे बाय डे। तो फिर हम लगाते हैं सनस्क्रीन लोशन, दैट इज बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। देन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू डिटेल ऑफ एनी ऑफ दिस पार्ट, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये समझाना है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम तब समझेगा जब ये पता होगा। देन यू हैव अ वेरी 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 स्मॉल पार्ट visible. So what we humans can see is actually a very 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 small part. So in reality we are living in a world which is illusion, क्योंकि हमको 98% तो दिखता ही नहीं है।
98% विजिबल मैटर का नहीं दिखता है। विजिबल मैटर खुद ही 4% है आउट ऑफ 100, बाकी 96 क्या है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो 4% का भी हमको 98% दिखता नहीं, राइट। तो दिस इज what we have is, you know, with your, we can see wavelength ranging from violet until red, correct, right। तो 3500 से लेके 7000 तक की हम देख सकते हैं। हाउ इज विजिबल लाइट क्रिएटेड, अगेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, राइट। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कॉपर एटम में नहीं है, वो किसी और एटम में है, या फिर सेमीकंडक्टर्स भी यूज करते हो टू प्रोड्यूस विजिबल लाइट। फिर उसके बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज भी अलग है, और इंफ्रारेड कवर्स अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें खुद 3 पार्ट और है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। तो IR covers the biggest part, biggest नहीं बोल सकते, ठीक है, but it covers a very big part of the spectrum। इसका यूज CCTV कैमरा में। तो वो जो कैमरा के आजू बाजू में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलिंग इनटू IR रीजन। क्यों लगाते हैं हम, रात में जब विजिबल लाइट नहीं होगा तो इमेज कैप्चर करने के लिए हमको रेडिएशन चाहिए। तो ये IR सोर्सेस दे रेडिएट फोटॉन्स, वो फोटॉन्स को इमिट करेंगे, वो फोटॉन्स ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस कहाँ जाएगा, कैमरा के अंदर, और क्या बनेगा उसका, इमेज। और कहाँ यूज होता है, धूम देखा है, धूम 3, आई डोंट नो 2 3 4 5, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट वॉच एनी, तो याद नहीं मेरे को। पर उसमें एक सीन था, वो आई थिंक ऋतिक रोशन चोरी करने जाता है, अच्छा सा गॉगल पहनता है, फिर उसको रेस दिखते हैं, फिर वो बच बच के जाता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम में यू यूज दिस काइंड ऑफ, क्योंकि क्या होता है, एक साइड पे, दीवार के एक साइड पे IR का सोर्स है, दूसरे साइड पे फोटो डिटेक्टर है। फोटो डिटेक्टर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स फोटॉन्स। अगर गलती से चोर बीच में आ गया, फोटोन वहां पे जाएगा नहीं, क्योंकि चोर ने ब्लॉक कर लिया, तो वहां पे जो करंट जनरेट हो रहा था वो होगा नहीं। करंट जनरेट नहीं होना मतलब इट इज सेंड एज अ सिग्नल कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, देयर इज समवन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर। और कहाँ यूज होता है, मोशन सेंसर। जो nowadays you have this fancy kind of automatic water supply वॉश बेसिन के नीचे, right, you sensor, there is a source of light, infrared, there is a detector। जैसे आपने हाथ वहां पे रखा बीच में, यू आर ब्लॉकिंग IR रेडिएशन, मतलब नीचे डिटेक्टर पे रेडिएशन जाएगा नहीं, इट विल सेंड दिस एज अ सिग्नल कि देयर इज समवन हु वांट्स टू वॉश हैंड, देन दे रिलीज वाटर। तो वहां पे यूज होता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा 1 महीना लगेगा IR पढ़ाने के लिए। इट टेक्स 1 month टू टीच होल IR। वेल इंटरेस्टिंग, ये IR प्रोड्यूस कैसे हुआ, you know which different types of degrees of freedom we had, translation, rotation, vibration। तो जब charged particles vibrate, because vibratory motion is accelerated motion, for example I am vibrating, maybe I am moving with constant speed, लेकिन velocity का direction change हुआ, velocity is a vector quantity, अगर magnitude change हुआ तो भी change है, direction change हुआ तो भी change है, करेक्ट। यहाँ तो दोनों ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन। एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन, और वो रेडिएशन आता है कौन से रीजन में, IR। देन इसके बाद का क्या था, माइक्रोवेव, सुना है क्या, माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस किया, IR कैसे प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस किया, रोटेशन। तो द स्टोरी इज ऐसा है, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। व्हाट इज वाटर, व्हाट इज वाटर, H2O। तो जब H2O
मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी फॉल्स इनटू माइक्रोवेव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। करेक्ट। उल्टा भी है, ये एनर्जी इमिट करेगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो एब्जॉर्ब करता है वो इमिट करता है, जो इमिट करता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रोटेट होगा वो एनर्जी इमिट करेगा। तो उल्टा भी तो है, अगर ये नॉन रोटेटिंग है और इस पे अगर माइक्रोवेव इंसिडेंट हो गया तो क्या करेगा, इट विल टेक अप दिस एनर्जी एंड स्टार्ट रोटेटिंग। वाइल रोटेटिंग, ये अकेला था क्या, वो हम कहाँ यूज करते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन में क्यों यूज करते हो ना, खाना गर्म करने के लिए। खाने में क्या होता है, पानी, पानी मतलब कौन, H2O। तो जैसे ही माइक्रोवेव, इंटरेस्टिंगली वो जो चेम्बर होता है ना, चेम्बर कौन सा चेम्बर, माइक्रोवेव ओवन का चेम्बर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक डिश, विच डिश इज रोटेटिंग। इस रोटेटिंग डिश के ऊपर आप खाना रख देते हो, उस खाने में क्या होता है, पानी। कोई भी खाना ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी नहीं है, नहीं हो सकता। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी फूड, यू कैन नॉट हैव अ फूड विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। कितना भी ड्राई से ड्राई हो, उसमें पानी का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होगा ही, होता ही है, राइट। देन व्हाट यू हैव इज, यहाँ से माइक्रोवेव रिलीज हुआ, किस पे आया, फूड पे। फूड में कौन है, H2O। H2O ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, रोटेशन। अब वो अकेला वाटर मॉलिक्यूल था क्या वहां पे, बाकी भी तो थे, बाकी एटम्स होंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, कैल्शियम क्या क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वाइल रोटेटिंग it undergoes collision with neighboring atoms and collision leads to friction, friction leads to heat। करते हो ना, ठंड में क्या करते हो, why you are generating heat with the help of friction। तो यहाँ पे collision की वजह से क्या हुआ, friction, friction ने क्या जनरेट किया, heat। तो this is how basically you can heat food। इसलिए वहां पे बड़े लेटर में लिखा होता है, do not use steel plates, do not keep something which does not have water। मतलब नॉन फूड आइटम रखना नहीं, क्योंकि क्या होगा फिर, रख दिया, एब्जॉर्ब तो कुछ हुआ ही नहीं, आया, रिफ्लेक्ट हुआ, गया, तो आपका इंस्ट्रूमेंट भी गया, वो सर्किट जला देगा बाद में। एनीवेज, तो माइक्रोवेव बेसिकली, माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस बाय रोटेशन। उसके बाद है रेडियो वेव्स, the most essential part of your life, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव नहीं होते तो जो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो तुम नहीं कर पाते, रेडियो वेव नहीं होते तो कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक नहीं चलता, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। व्हेन यू डायल अ नंबर, the mobile phone will send a signal to the satellite, the satellite will take that signal and check किसके साथ कनेक्ट करना था, तो satellite will transmit the signal to the receiver's end। so all this communication takes place with the help of radio wave। तो ये full flex spectrum है, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी। अब ऐसा है, क्या चेंज हुआ, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन क्रैश एंड क्रैश, डन। प्रोडक्शन टेक्निक बदल गया, यूज बदल गया। जहां पे आप रेडियो वेव यूज करते हो वहां पे एक्सरे यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज, करने गए तो रेडियो वेव कहाँ यूज करते हो, मोबाइल फोन्स के कम्युनिकेशन के लिए, वहां एक्सरे यूज किया, तो जो फोन यूज कर रहा है वो 2-3 दिन के बाद नहीं दिखेगा, नो मोर। व्हाई, एक्सरे आर हार्मफुल, ब्रेन के सेल्स को मार देगा, वो खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। इसके लिए तो हम फ्रैक्चर के लिए एक्सरे यूज करते हैं, ब्रेन के लिए हम यूज नहीं करते हो, क्या यूज करते हैं, एमआरआई, एमआरआई, राइट। तो एमआरआई इज डिफरेंट थिंग, डज नॉट यूज एक्सरे देयर, राइट। और आप जहाँ पे रेडियो वेव यूज करते हो वहां पे विजिबल भी नहीं यूज कर सकते, करते तो जब आप फोन लगाते तो दिखता, किसी के मोबाइल से ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है, किसी के मोबाइल से रेड कलर का लाइट निकल रहा है, निकल तो गया, रिसीवर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस है जो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं या तो स्कैटर करते हैं, राइट। दैट इज द रीजन you cannot use visible light for communication system। और बेस्ट एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल में
स्टॉप सिग्नल रेड से ही क्यों यूज होता है? व्हाई नॉट सम अदर कलर? रेड लाइट, red light is the least absorbed by the gases in our atmosphere. तो दूर तक दिखता है वो. Red color is the least absorbed and the most scattered, right? तो दूर से दिखेगा कि वो रेड सिग्नल है वहां पे. Why the color of rising sun or setting sun is red? For the same reason. रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, सिर्फ रेड का एब्जॉर्प्शन ना होते हुए स्कैटरिंग हुआ, राइट? तो यू कैनॉट यूज विजिबल लाइट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन. तो रेडियो ही क्यों यूज करते हैं? रेडियो यूज इसके लिए करते हैं क्योंकि रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं है. इट इज द लीस्ट एब्जॉर्ब एंड द लीस्ट स्कैटर्ड. तो बेस्ट है वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए. एंड देन इट इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. उसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं. अभी आपको पता लगा होगा 5-6 दिन पहले ऑक्शन हुआ 5G बैंड्स का. तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी देन. तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. इसका मतलब ये है कि जिस इमिसिव पावर की हम बात कर रहे थे, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन वेवलेंथ. मतलब ये कि हर एक वेवलेंथ पे सेम इमिसिव पावर हमको मिलेगा ऐसा नहीं है. तो अलग अलग वेवलेंथ पे इमिसिव पावर भी होगा अलग अलग. तो जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या? इट इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब कौन? इमिसिव पावर. तो इसको कई सारे बुक्स में इमिसिव पावर की जगह पे क्या बोला है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. एक ही बात है, उसको आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोलो या बोलो इमिसिव पावर. तो आप जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्लॉट करते हो एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, राइट? रिमेंबर 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 एंड नेवर फॉरगेट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो इमिसिव पावर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो जब आप इमिसिव पावर देख रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, यू आर कीपिंग द बॉडी एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर. कौन सा बॉडी? ब्लैक बॉडी. तो लेट अस से हमने ब्लैक बॉडी लिया, उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन फिक्स कर दिया. अब जब हम बेसिकली द आइडिया हियर इज, थोड़ा सा थ्योरी भी लिखते जाएंगे. व्हाट वी आर डूइंग इज we are keeping a black body at a fixed temperature and we are measuring the variation of intensity of radiation as a function of wavelength, right? So ये याद रखना. All of this is of no use to us now, so it can go. It was just for you to understand spectrum मतलब क्या? Range of wavelength, that is called as spectrum, right? So अब सबसे पहले what we are doing here is, right, a black body is kept. और नोट्स में मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है. अलग मतलब मैंने उसको जनरल केस लिया. मैंने एक साथ बहुत सारे बॉडीज लिए. एक बॉडी 1000 केल्विन पे, दूसरा 2000 केल्विन पे, तीसरा 3000 केल्विन पे, चौथा 4000 केल्विन पे. तो वहां पे लिखते वक्त भी ऐसा लिखा होगा, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट ब्लैक बॉडीज आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. रिमेंबर, जब एक साथ 6 बॉडी का स्टडी करोगे तो 6 अलग अलग बॉडी का 6 अलग अलग टेम्परेचर होगा. मैं यहाँ पे फिलहाल किसकी बात कर रहा हूँ? सिंगल. क्योंकि पहले सिंगल स्पेक्ट्रम समझो, बाद में 6 को साथ में समझेंगे. तो अ ब्लैक बॉडी इज केप्ट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर. Then the intensity of radiation मतलब कौन? emissive power. The intensity of radiation is measured at different wavelengths, मतलब as a function of wavelength. तो अलग अलग वेवलेंथ पे आपने क्या मेजर किया? emissive power, right? So you are measuring emissive power at different wavelengths, but the temperature is kept constant. Good. Then
अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वेवलेंथ कहाँ से आ गया, हम तो रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। रेडिएंट एनर्जी भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंटरेस्टिंगली इस पे वापस आएंगे, वी विल कंटिन्यू। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना ही चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। You see different stars in night sky. Some stars may appear yellow to you, some stars may appear red to you, some will appear blue. Blue color के स्टार भी होते हैं। तो which type of energy are they radiating? Which is that energy? Radiant energy, because they are emitting because of the temperature, correct? लेकिन क्या आपको पता है, ये जो आप कलर्स देखते हो, they are also an indicator of the temperature of the star, surface temperature. For example, a young star like our sun, अब हमारा जो सन है वो अभी जस्ट टीनेज से बाहर आया। Stars also have a life cycle. They are born, they become young, then they also become old, and then they die. तो येलो मतलब इट इज इन यंग स्टेज, एंड येलो मतलब टेम्परेचर इज बिटवीन 5000 to 6000 केल्विन। तो हमारा जो स्टार है उसका सरफेस टेम्परेचर पता है 5800 केल्विन। जितना अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। देन यू सी बिग बिग स्टार्स, बिग साइज में बिग, कलर में रेड, बेटलगीज पता होगा, सुना होगा, राइट? यू इफ यू हैव आइडिया ऑफ कॉन्स्टलेशन, तो ठीक है, कभी देखना रेड कलर का स्टार दिखेगा, कोई भी रेड कलर का स्टार, मतलब दैट स्टार इज बेसिकली एट इट्स डाइंग स्टेज। तो रेड मतलब लेस टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर 1500 से 2500 केल्विन होता है। इफ यू सी ब्लू, it is greater than 10,000 Kelvin. It is a young star, just born, full of energy, right? Correct. So that is why ये जो emissive power है, it is a function of wavelength. अलग अलग wavelength पे emissive power भी अलग अलग। तो very obvious कि blue color के wavelength पे emissive power ज्यादा होगा। That is very obvious thing, right? तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमने एक ब्लैक बॉडी लिया, एंड एवरी स्टार इज अ ब्लैक बॉडी, is kept at some fixed temperature. We cannot fix the temperature of a star, पर हम एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बना सकते हैं जिसका टेम्परेचर फिक्स होगा। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट हमने किए, किसके मेजरमेंट्स थे ये? इमिसिव पावर अगेंस्ट वेवलेंथ। दे आर प्लॉटेड, दे आर शोन ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो दीज मेजरमेंट्स, तो हमने मेजर किया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। These measurements are shown graphically as curves. ये जो कर्व है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, राइट? देन इफ यू सी, ये जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं दिखता कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज बीइंग नोटिस्ड इज, जैसे ही हम हायर वेवलेंथ पे चेक कर रहे हैं, मतलब फॉर अ गिवन वेवलेंथ यू हैव सम वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको इमिसिव पावर का कुछ वैल्यू मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का कुछ वैल्यू मिलेगा। एज यू इंक्रीज वेवलेंथ, तो एट हायर वेवलेंथ इमिसिव पावर इंक्रीजेस। जितना वेवलेंथ बढ़ाओगे उतना इंक्रीज होते जाएगा अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ये पहला ऑब्जर्वेशन। The intensity of radiation या emissive power is seen to increase with increasing wavelength. Then at some particular wavelength, एक particular wavelength पे जिसको हम बोलते हैं lambda max, तो we denote this by lambda max. तो at a particular wavelength जिसको हम denote करते हैं किससे? lambda max से। lambda max इस particular wavelength पे intensity of radiation is maximum, मतलब इमिसिव पावर क्या है? मैक्सिमम है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इमिसिव पावर इज सीन टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इट रीचेस मैक्सिमम, इमिसिव पावर हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा मैक्स। एंड देन विथ फर्दर इंक्रीज,
with further increase in wavelength intensity of radiation is seen to decrease, right? तो अगर मैं इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करूं, if I connect this dots, I will see something like this, correct? तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब वेवलेंथ के साथ साथ इमेसिव पावर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक मैक्सिमम वैल्यू आया, उसके बाद वापस से विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इमेसिव पावर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देन रिमेंबर, मैंने इसलिए पहले वहां पे डॉट्स दिखाए थे, उसका रीजन था हम कर क्या रहे थे, हम अलग अलग वेवलेंथ पे क्या मेजर कर रहे हैं, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब क्या, एनर्जी इमिटेड, राइट? तो हमने जो मेजरमेंट्स लिए, ये हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन दिस ग्राफ टेल्स यू कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी कितना इमिट हुआ, व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड एट ईच वेवलेंथ। लेकिन हमको टोटल एनर्जी पता लगा क्या इससे? नहीं। तो टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी is given by area under the curve. इस कर्व के नीचे, इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, that area under the curve gives us total energy emitted by a black body, right? Correct. So what you have done is, हमारे पास एक ब्लैक बॉडी था which was kept at fixed temperature. हमने क्या मेजर किया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब क्या मेजर किया, इमिसिव पावर एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये मेजरमेंट्स को हमने कैसे शो किया, ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व। अभी सिंगल बॉडी सिंगल टेम्परेचर है तो कर्व होगा, बहुत सारे बॉडीज एक साथ लिए तो प्लूरल लिखोगे, करेक्ट? तो इट इज सीन दैट व्हाट वी ऑब्जर्व इज, it is seen that number one, it is seen that intensity of radiation, emissive power, intensity of radiation increases with increase in wavelength, with increase in wavelength। और एक चीज समझ लो, आज ही समझ लो, साइंस में अच्छा करना है तो ग्राफ अच्छे से समझने ही पड़ेंगे, यू डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली हम ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन से ज्यादा समझते हैं कंपेयर टू थ्योरी। तो जस्ट बाय लुकिंग एट अ ग्राफ यू कैन से अ लॉट। पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हुआ, मैक्सिमम, राइट? तो एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, at a particular wavelength, lambda max, we denote it by lambda max. So at a particular wavelength lambda max, the intensity of radiation, is maximum, The intensity of radiation decreases again. The intensity of radiation again decreases with further increase in temperature नहीं, with further increase in wavelength। मतलब हायर वेवलेंथ पे वापस से इमिशन कम होता है, इमिसिव पावर कम होता है। उसका और एक मतलब भी होता है। तो जो पीक वैल्यू है, मैंने अभी बताया, एवरी स्टार इंक्लूडिंग आवर सन इज इमिटिंग रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, रेडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विजिबल में 7 कलर है, विब्ग्योर, तो हमको येलो ही क्यों दिखता है? फिर येलो ही क्यों दिखता है? क्योंकि लैम्बडा मैक्स हमारे स्टार का इट इज 5893 के आसपास। मतलब मैक्सिमम एनर्जी आर नियर स्टार सन इज इमिटिंग, मैक्सिमम एनर्जी मतलब पीक,
वो पीक कौन से वेवलेंथ में आया, येलो में, दैट इज व्हाई यू सी येलो। इट डजंट मीन कि बाकी वेवलेंथ पे इमिशन हुआ ही नहीं हुआ, कम हुआ। यूवी में कम है, इंफ्रारेड में भी कम है, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, येलो पे। तो इट इज दिस व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ग्राफ। तो इवन वैल्यू से समझ में आ जाएगा आपको। देन टोटल एनर्जी इमिटेड is given by area under the curve. This observation, area under the curve, area under the curve gives total energy emitted by the black body, यहाँ तक clear? Yes, right? So did you understand these three observations? I will finish this topic off. So you will have to sit for 5 more minutes without any objection. So what happens if we increase the temperature? अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या फिर हमने अलग अलग बॉडीज ले ली डिफरेंट टेम्परेचर पे, दोनों एक ही बात है। या तो एक सिंगल बॉडी लो, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे रखो, या तो फिर एक साथ 4-5 बॉडीज लो, अलग अलग टेम्परेचर पे रखो, इट्स द सेम थिंग। तो व्हाट डू वी सी, हमारे पास पहले जो कर्व था, समझ लो ये 1000 केल्विन पे था, राइट? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? हर एक वेवलेंथ पे कितना एनर्जी इमिट हो रहा है उसको बोलते हो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाई नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम। मैं अगर कोई भी वेवलेंथ लेता हूँ, हर एक वेवलेंथ पे इमिसिव पावर अगर सेम रहता है तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 2000 केल्विन का ग्राफ है। सिर्फ यस, थोड़ा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ बिकॉज वेरी ऑब्वियस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी इमिट भी ज्यादा होगा, राइट? लेकिन जो ग्राफ है इट स्टिल रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म। मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अगेन you will see it is still non-uniform. Energy distribution is still non-uniform. So with increase in temperature, I will not put down these points here, मैं लिखने नहीं वाला, लेकिन दिमाग में फिट कर लो। With increase in temperature, पहला observation, energy distribution remains non-uniform. Number two समझोगे, आगे समझोगे। ये और एक कर्व है कितने पे? 4000। फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, एग्जाम्पल 5000 लिया, तो ये और एक कर्व है। तो नेचर तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ग्राफ शिफ्ट होता गया। इफ यू नोटिस वेरी क्लोजली, लैम्डा मैक्स इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहली बार पहले कर्व के लिए जहां पे आपको मैक्सिमम इमिसिव पावर मिला था, लैम्डा मैक्स, ये पहले ग्राफ का है, राइट? अब वैसे ही मैं बाकी ग्राफ का लैम्डा मैक्स अगर देखता हूं तो इफ यू नोटिस, वो मैंने जानबूझ के शिफ्ट किया है, ये इंटेंशनली शिफ्ट किया है। तो जो पीक वैल्यू आ रही है, किसकी पीक वैल्यू? इमिसिव पावर की। एट हायर टेम्परेचर द पीक, किसका पीक? इमिसिव पावर का पीक, ये कम वेवलेंथ पे मिल रहा है। मतलब ये द इंटेंसिटी of radiation peaks at smaller wavelength, right? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि टेम्परेचर एंड लैम्डा मैक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऐसा हुआ, बाकी सब तो सेम था, लेकिन इमिसिव पावर जिस वेवलेंथ पे पीक हो रहा था वो कम हो गया। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, lambda max, the wavelength at which intensity of radiation is maximum, shift to the left
displaces to the left, right? Which means lambda max is inversely proportional to temperature of the body. ये second observation है. तीसरा observation, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टोटल एनर्जी होगा. The total energy emitted at higher temperature is more. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टोटल एनर्जी इमिट होगा, राइट. तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस आपने जब अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी को रखा तो वहां से तीन कंक्लूजन आए. और तीन कंक्लूजन कहाँ से आए? जब आपके पास सिंगल बॉडी था एक सिंगल टेम्परेचर पे, राइट. तो ये कंक्लूजन्स आर इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन at different wavelengths. So that's it for today.